پہلی تنخواہ ملنے کے بعد ہر اس دکان پہ جا رہی تھی جہاں سے ادھار لیا تھا، جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز بھی لیتی گئی۔ وہ لوگ اس کے ہاتھ میں تحفہ دیکھ کر شرمندہ ہوتے اور اپنے پیسوں کے لیے انکار کر دیتے کہ انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، لیکن مریم کو کسی کا احسان نہیں چاہیے تھا۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے احسن طریقے سے انہیں ان کے قرض لوٹا رہی تھی۔ کسی کے پاس 2 کپ کیک کھائے تھے، کسی سے سوپ پیا تھا، کہیں لمبے چوڑے ادھار نہیں تھے، لیکن ان کے اتارتے وقت اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کندھوں سے بھاری بوجھ ہٹتا جا رہا ہو۔ وہ جب مسکرا کر انہیں ادھار رقم کے ساتھ تحفہ پیش کرتی تو وہ شرمندہ ہو اٹھتی۔ وہ ان کی بد اخلاقی کے زہر کے اپنی اچھے اخلاق کے ساتھ ختم کر رہی تھی۔ کچھ دکانیں ایسی بھی تھیں جہاں کی وہ ریگولر بیکارن کسٹمر تھی۔ اس نے لی شاپنگ کر کے اس نے بہت کچھ ملیوں کے لیے لیا تھا۔ راستے میں کہیں میری نظر آتی تو وہ محبت سے اس کے آگے کھانے کی چیز رکھتی تھی اور وہ اس جانور کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اسے اس گلی میں گئی تھی اور وہ رات کے اس گلی کا انتظار کرتی رہی۔ وہ نہیں آئی۔ وہ اداسی سے اٹھ آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ لینے کا سوچ رکھا تھا۔ روس میں تقریباً ہر چیز گورنمنٹ کی ہے، لیکن پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر تھا اور ماسکو بڑا شہر تھا، سو پورے ملک سے لوگ اچھی جابس کے لیے وہیں آتے تھے اور پھر رہائش بھی چاہیے ہوتی تو وہاں رہائش بہت زیادہ مہنگی تھی، لیکن مریم کو اپنا گھر چاہیے تھا۔ وہاں ہوٹل اور ہاسٹل بھی مہنگے تھے۔ اگر وہاں رہائش رکھتی تو اپنا گھر نہیں بنتا۔ نہ ہفتے کے چند دن کسی ہاسٹل میں بکنگ کر لیتی، ورنہ اس سے باہر رہنے کا خوب تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ پیسے بچ کر اپنا گھر بنانے والی تھی۔ پھر ادارے میں ایک فرینچ ٹیچر نے کہا کہ کسی رشین فیملی کے پاس پیئنگ گیسٹ بن جائے۔ مریم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے کہنے پر وہ ایک بڑی سی فیملی کی مہمان تھی اور وہاں رہتے اور رشین کلچر کو دیکھ رہی تھی۔ عموماً پاکستانی فیملیز کی طرح بڑی فیملیز تھی، 5-6 بچے، دادی دادا کا ساتھ رہنا، جوائنٹ فیملیز۔ یہ رہائش مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ پہلے دلی شادیوں کا رواج تھا، ابھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح سے وہ مشرقی تھا مگر مغرب کے رنگ سے دکھتا تھا۔ لباس کے معاملے میں پورا مغرب تھا اور روایت کے حساب سے مشرق۔ وہ اصل روس کو اب دیکھ رہی تھی۔ ایک مڈل کلاس فیملی کے ساتھ رہتے وہ اسے لوگ پسند آئے تھے۔ جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ امریکیوں کی رائے پر جاتی تو روسی ذرا سنجیدہ مزاج تھے یا پھر ہر کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ سے نوازنے والے نہیں۔ خیر ایسا نہیں تھا۔ اس کی ذاتی رائے کے مطابق وہ اچھے لوگ تھے، مہمان نواز اور بےحد تک اپنے ملک اور شہر میں خوش رہنے والے۔ پھر اس نے کسی کانسرٹ میں کال کر کے اپنا کیس کا پتہ کیا۔ کرسٹینیا بچ گئی تھی اور یہ کیس بھی اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے حد و بے حساب خوش تھی۔ دیر سے ہی صحیح مگر اچھا وقت لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس جاب کے لیے اچھا امیدوار ثابت کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہی تھی۔ اس کے پاس صرف 30 اسٹوڈنٹ تھے اور ان کی اور اس کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً ہم عمر تھے۔ تو پہلے اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان سے کیسے اور کس طرح کا تعلق قائم کرے۔ پھر وہ ان کے لیے دوست بن گئی تھی، مگر جب ایسا ہوتا تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ شاگرد اس دوستی کے آڑ میں لحاظ اور احترام کے پردے کو ختم کر دیتے تھے۔ وہ احترام کی حدوں سے نکل جاتا۔ مریم کے لیے پہلا تجربہ تھا اپنی کسی شاگرد سے کوئی بھی ایسی بات سننا۔ وہ غصے میں تھی۔ اسٹاف روم میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ویسے تو ہر استاد کا اپنا آفس تھا، لیکن کبھی کبھار سب اس کمرے میں مل بیٹھ کے باتیں کیا کرتے۔ اس نے شاگرد کو تو کچھ نہیں کہا تھا، اب بیٹھ کے اپنے آپ کو سنا رہی تھی۔ اس وقت اسٹاف روم میں ایک سینئر استاد داخل ہوئے۔ مریم نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ سر البرٹ تھے، اسی ادب میں پی ایچ ڈی تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ اچھالی اور ایک جانب رکھے صوفے پر جا بیٹھے۔ وہ سامنے میز پر رکھا اخبار پڑھنے لگے۔ مریم نے چند گہری سانسیں لی تاکہ غصہ کم ہو۔ ابھی واپس کلاس میں جانا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس مریم؟ رشین میں مس کو میس بولا جاتا ہے، جسے ایم کے بعد آئی کی بجائے ای لگا دیا جائے۔ انہوں نے اخبار کے ایک کونے کو فوڑ کر کے اسے دیکھا۔ مریم نے ان سے زیادہ خوبصورت رشین زبان کسی کو بولتے نہیں سنا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا ان کے انداز میں۔ وہ زیادہ تر رشین میں ہی بات کرتے تھے۔ مریم کی رشین اب اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ وہ آرام سے بات چیت کر لیتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے بھی لفظ کو رشین انداز میں کہا۔ وہ ہنستی ہے۔ آپ میں سیکھنے کی بہت صلاحیت ہے، بہت جلدی آپ ہماری زبان سیکھ گئی ہیں۔ انہوں نے سراہایا، لیکن مشکل لفظ ابھی بھی بولے نہیں آتے۔
जब आप बोलती हैं तो पता चलता है मैंने अभी अभी कुछ नहीं सीखा। वो इसकी तारीफ पर मुस्काए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, आप में सीखने की सलाहियत है। कहीं एक दिन आप यहाँ खड़ी होकर हमें रशियन ज़ुबान ना पढ़ा रही हो। अरे नहीं सर, रहने दें। आजकल के स्टूडेंट कतरे बदतमीज़ हैं। मैं कभी भी दोबारा टीचर नहीं बनना चाहूँगी। इसका लहज़ा तल्ख़ था। क्यों? क्या हुआ? इन्होंने अब्रू झुकाया। इन्होंने अखबार को फोल्ड करके इससे टांगों पर रखा। हुआ तो कुछ नहीं, बस मैंने नोट किया है कि आजकल के स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करते। वो ये तो कभी नहीं बता सकते थे कि मेरे शागिर्द मेरी इज्जत नहीं करते। इसमें पहली गलती खुद उस्तादों की है। हमारे ज़मानों में मौलवी पेशे को सिर्फ वही अपनाता जिसे शौक होता, मगर आज बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जिन्हें शौक तो कुछ और बनने का होता है, मगर बन उस्ताद जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, पैसा बनाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। फिर जिसका शौक ना हो, वो काम अच्छे से होता भी नहीं, क्योंकि इसमें इंसान का खलूस नहीं होता। जब तक आप अपने पेशे से मुखलिस ना हो, वहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती। पैसे के लिए जाते हैं तो बस फिर पैसा ही मिलता है। फिर यहाँ चाँद, सूरज की मिसाल दी जा सकती है, इकट्ठे नहीं आ सकते। ऐसे ही बिना खलूस के आने वाले मौलवी पेशे से सिर्फ पैसे ही मिलते हैं, इज़्ज़त नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में इसे समझाने के लिए आसान अल्फाज में बात कर रहे थे। मरियम की हालत तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या वो जानते थे कि वो पैसों के लिए आई थी, या ऐसे ही रैंडमली बात कर रही थी? सर, इसका मतलब अगर इंसान मौलवी पेशा इख्तियार करे तो पैसों की तमन्ना ना करे, फिर इसकी मुआशी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? इसकी बात सुनकर वो यूं हंसी जैसे किसी नादान बच्चे की बात में फंसा जाता है। आप मेरी बात को समझी नहीं। जब आप किसी पेशे को अपना शौक बना लेते हैं, तो वहाँ इज़्ज़त के साथ पैसा भी मिलता है। ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। उस्ताद को सोचना चाहिए कि माँ-बाप अपनी औलाद को जब आपके पास भेज रहे हैं, वो दिन का बहुत सा हिस्सा उस्ताद के साथ गुज़ार रहा है। तो ऐसे में सिर्फ निसाब नहीं पढ़ाया जाता, इनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी भी उस्ताद पर आ जाती है। घर की निस्बत बच्चा तालीमी इदारे में ज़्यादा वक़्त गुज़ारता है, और यहाँ आके उस्ताद वो मिलते हैं जो पैसों के लिए आए होते हैं। जिन्हें किसी और पेशे में अच्छे पैसे मिले तो फ़ौरन वहाँ भाग जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ खुद को किसी मकाम पर ले जाना होता है, वो सिर्फ़ अपने लिए मौके तलाश में रहते हैं, तो उठ जाते हैं। फिर वो ये परवाह नहीं करते कि किसी के जिगर गोशे इनके पास शरबत के लिए आए बैठे हैं। याद रखो, एक लालची कभी अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। ये दुनिया का सबसे मुकद्दस काम है। इसमें अगर मोहब्बत और खलूस ना हो, तो फिर ऐसा हाल होता है जैसा आजकल हो रहा है। ऐसे उस्ताद फिर ऐसे ही शागिर्द बना सकते हैं। मरियम बिल्कुल चुप बैठी थी। फिर चेहरे पर ज़बरदस्ती फीकी मुस्कुराहट सजाए वो वहाँ से उठ आई थी। रात रात वो अकेले बैठकर अपने एहतसाब कर रही थी। ठीक है, वो अपनी मुआशी ज़रूरियात के लिए गई थी वहाँ, लेकिन वो अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए किसी की ज़िंदगी से अच्छे उस्ताद का हक़ नहीं छीन सकती थी। अगर वो अच्छी उस्ताद नहीं बन सकती थी, इसके अंदर इस मौलवी पेशे का खलूस और एहतराम नहीं था, इसे छोड़ देना चाहिए था। कोई नहीं, जिन दिन और मुश्किल हो जाएँगे, मगर कई इंसानों को एक बेहतर उस्ताद मिल सकता है। सिर्फ़ अपने भले के लिए किसी और की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, देर से ही सही मगर अपने किसी शोबे में कोई काम मिल जाएगा। क्या मैं अपने मौजूदा पेशे से मुख़लिस हूँ? वो अपनी अदालत में खड़ी थी और वो कड़ी जज थी खुद के लिए। ठीक है, मैं पैसे के लिए गई थी, मगर मैंने हर दिन इन्हें पढ़ाने के लिए मेहनत की है। मैं अब तक खुद को इस नौकरी के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश करती हूँ, मगर अब मैं खुद को अच्छा उस्ताद बनाने की मेहनत करूँगी। मैं अपने पूरे खलूस से इस पेशे को अपनाऊँगी और जी जान लगा दूँगी। मौलवी पेशा एक पैगम्बरी पेशा है। मैं इसकी हुर्मत पामाल नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो खुद से अहद कर रही थी। पूरा 1 साल पैसे जोड़-जोड़ कर वो अपना घर लेने में कामयाब हो गई थी। एक छोटा-सा अपार्टमेंट, वो 1 साल के एग्रीमेंट पर एक प्राइवेट बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने में कामयाब हो गई थी। और इस वक़्त वहाँ कोई सामान नहीं था। सारे पैसे वो इसे लेने में लगा चुकी थी। वो खुशी से इसके एक-एक कोने को देख रही थी। मेरा घर, कितना सुकून है यहाँ। इसने दरमियान में खड़े होकर आँखें बंद करके बाजू फैला लिए। फिर इसके बाद वो इस घर के लिए एक-एक चीज़ जोड़ती रही। ज़िंदगी में खुशियाँ तो नहीं आई थी, मगर अब वो इतने में ही खुश थी कि वो इज़्ज़त के साथ रह रही थी। वो 2 दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो अंदर से डर गई थी। अब आखिर तो ज़िंदगी अपने डगर पर रवा-दवा हुई थी। मज़ीद इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी मुसीबत को झेल सकती। 1-2 बार चुपके से गर्दन मोड़कर इसने देखा,
मगर कोई नजर नहीं आया। कहीं फिजी माफिया वाले तो नहीं थे? इन्हें क्या मालूम मैं कहाँ हूँ? अबू या अली नामुमकिन, वो बस पाकिस्तान तक ही ढूंढेंगे। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मरियम कभी मुल्क छोड़ सकती है। हाशिम, आखिरी नाम जहन में आते ही चंद लम्हे को सांसें रुकी थी। वो तलाक दे चुका था, वो क्यों आएगा? इसका क्या वास्ता? वो अपनी हर सोच को खुद रद्द कर रही थी। फिर इसने तेजी से भागना शुरू कर दिया। इन गुजरे 1.5 सालों में वो मास्को की गलियों से खौफ हो वाकिफ हो चुकी थी। बहुत सी गलियां अबूर करके वो एक टैक्सी लेकर घर आ गई थी। लेकिन ये मसला का हल नहीं था। अगर वो कल भी यूं ही इसके पीछे आया, कहीं घर तक न पहुंच जाए। वो सोते से उठकर जल्दी से भागी। सारी खिड़कियां चेकी थी, दरवाजे के आगे घसीटने एक भारी छोटी अलमारी दे दी थी। मगर फिर भी इस रात इसे खौफ से नींद नहीं आई थी। अगले दिन घर से निकलने से पहले वो सोचती रही, अपने बचाव के लिए क्या तरतीब इख्तियार करें। इसने फ्रिज खोला और कितनी देर वहां रखी चीजों को देखती रही। मालूम पर नजर पड़ते ही इसके दिमाग में आइडिया आया। अब वो तेजी से अपना काम कर रही थी। फिर निकलने से पहले वो नारीदा दुश्मन से लड़ने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर निकली थी। आज रात को इसने मिसेस एना के घर पे डिनर पे जाना था। और भी टीचर मौजूद थे। वहां जाते हुए रास्ते में इसे फिर महसूस हुआ था कोई इसके पीछे है। इसने एक रश वाले एरिया से गुजर रही थी। रात को 10 बजे वहां से फारिग होकर जब वो निकली तो एक टीचर ने इसे ड्रॉप करने की ऑफर की थी। इसने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। बाहर का मौसम था, बहुत खुशगवार हल चल रही थी। इसका पैदल चलने का मूड था। वो अपने पीछे आने वाले बंदे को भूल चुकी थी। इस डिनर ने इसका मूड अच्छा कर दिया था। वो अभी वो रौनक इलाके से गुजर रही थी। जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए कम रोशन गलियों में गई, इसे अपने पीछे वाज़ेह कदमों की चाप महसूस हुई। वो मुस्कुराई। वो जो भी हो आते रहो, जो भी हो आते रहो। आज तो तुम्हें खूब सबक सिखाऊंगी। वो जो भी था, या तो बेवकूफ था या फिर इसे डराना चाहता था, वरना कदमों की आवाज पैदा किए बिना आता। मरियम ने कंधों पर रखे बैग को उतारकर सामने कर लिया था। अब वो इससे कुछ निकाल रही थी। दूसरे हाथ में मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल कर लिया था। कॉल मिलाई नहीं थी। और इसी वक्त पीछे से आते शख्स ने एकदम से झपट कर इसके बैग को दबोचना चाहा। मरियम ने एक मुट्ठी में नमक मिर्च का मिक्सर इसी तेजी से इसके मुंह पर उछाला। आह! वो तेजी से पीछे हुआ था और अपने मुंह के आगे दोनों हाथों को पंखे की तरह झल रहा था। ये मस्करा इसकी आंखों में गया था। ये मिक्सर इसकी आंखों में गया था। मरियम ने जल्दी से दूसरी मुट्ठी भर के आगे बढ़ के इसके खुले मुंह में ठोसी। वो कोई गैर मुल्की था और इन्हें इंडियन मिर्चों को तेजी का क्या मालूम। हाँ, भला इन्हें क्या मालूम। वो थूस कर रहा था। एक तो आंखें नहीं खुल रही थी और मुंह में भी मिर्चें भर गई थी। मरियम ने जल्दी से पुलिस का कॉल मिलाई। वो चीख रहा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था। मरियम ने बैग से एक तेज छुरी निकाल के इसके जाने पर आई हुई थी। अगर भी अब भी वो कुछ करता तो वो इसे जख्म दे देती। मगर वो बेचारा इन मिर्चों से ही नहीं निकल पा रहा था। पानी पानी। मिर्चों की वजह से वो बेचारा तो तोतला हो रहा था। अब पानी क्यों? कोई नहीं मिला पानी। वो इसी तरह छुरी बढ़ाई खड़ी थी। खबरदार भागने की कोशिश की। छुरी तुम्हारे पेट में डाल के फिर इस पर नमक मिर्च डाल दूंगी। बैठे रहो आराम से। वो नीचे गिरा, अब बेहाल हो रहा था। मरियम की रशियन जुबान में दी धमकी से खूब सुनाई दी थी। जलती बुझती आंखों के साथ वो भागने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो खूंखार लड़की, इसके पेट में भी वो मिक्सर घुसा सकती थी। थोड़ी देर गुजरी थी, पुलिस वहां आ गई थी। फिर वो दोनों ही पुलिस स्टेशन में थे। इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। इसने समझा कि मैं अकेली हूँ तो आसान शिकार हूँ, लेकिन मैं इतना बचाव कर लिया। वो जहरीली औरत है, हाय कोई पानी पिलाओ, मैं मर जाऊंगा। वो कब से यही सताए लगा रहा था। पुलिस वालों ने इसकी नहीं सुनी थी। इसने गुस्से से इसी जहरीली औरत की सदा पर इसे घूरा था। वो 20 या 21 साल का लड़का था। सर के बाल हल्के भूरे थे और बहुत गोरे रंग का थी। कद मरियम के बराबर ही था। वो बोलता जा रहा था। वो इसे दूसरी जानिब ले गए थे। अब मरियम एक अफसर के सामने बैठी अपना बयान दे रही थी। क्या पहले इस लड़के ने आपको तंग किया है? मैं काफी दिनों 2 दिन से नोट कर रही थी। कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मुड़ के देखती तब कोई नहीं होता था। आज मैं एक कुलीग के घर से डिनर करके जा रही थी कि इसने अंधेरी गली का फायदा उठा के मेरा बैग झपटना चाहा। एक जानिब इसके बैग की तलाशी हो रही थी जहाँ से 2 किताबों
टेक्चर नोट्स के साथ साथ माल्टे, अमरूद और एक कागज की पुड़ी में नमक मिर्च का मिक्सर निकला था और एक तेज धार छुरी थी, तो वो सब्जी काटने वाली मगर तेज बहुत। फिर वो सारी चीजें एक अफसर ने आगे बढ़कर इसके सामने टेबल पे रख दी। क्या ये सब आपका है? जी, इसने एतमाद से जवाब दिया। छुरी क्यों और नमक मिर्च का मिक्सर? वो कई तीव्रों से पूछ रहा था। देखिए, मुझे माल्टे और अमरूद बहुत पसंद है। टीचर हूँ, आधा दिन बाहर गुजरता है, तो कुछ खाने के बजाय अपना फेवरेट फ्रूट्स खाती हूँ। और मैं बहुत महज़ब लड़की हूँ, फ्रूट्स को काट के खाना पसंद करती हूँ, इसलिए छुरी साथ रखती हूँ। और जैसा कि आपने मेरा पासपोर्ट देखा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे बताने दें कि हमारे यहाँ अमरूद और माल्टे काट कर इन पर मिक्सर लगाकर ये वाला खाया जाता है। हम लोग तीखा खाते हैं। मरियम का एतमाद तीखने के काबिल था, तो वो इससे चीख रहा था कि आपने इस पर मिक्सर डाला था। मैं इस वक्त माल्टा काट कर खाने वाली थी, इसने मुझ पर हमला कर दिया। ये बंदा अपने बचाव के लिए जो इसके हाथ में होता है करता है। इसकी मासूमियत पर इस वक्त फिदा हो जा सकता था इसकी मासूमियत पर इस वक्त फिदा हुआ जा सकता था, मगर वो पुलिस वाले इस सब में आने वाले नहीं थे। वो इसी कड़े तेवरों से इससे पूछ-गुछ कर रहे थे। मैं यहाँ एक उस्ताद हूँ, मेरे मुआशरे में एक इज़्ज़त है। अगर रूस में इसके उस्तादों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता, कोई भी गैर मुल्की आकर किसी उस्ताद को हिरासा करता है, तो फिर इस इंसान को मदद करने के बजाय उस्ताद को मदद करके इंटेरोगेट किया जाता है। वाह! मैं तो रूस के कानून को इज़्ज़त की निगाह से देखती थी। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ बाहर से आए मेहमान और उस्ताद की कोई इज़्ज़त नहीं। इनके मुसलसल सवालों के बाद वो आखिर झुंझुला कर बोल उठी और फिर इसके सामने बैठा अफसर एकदम से सीधा हो बैठा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम बस जुर्म की रोकथाम के लिए इस तरह से सख्ती से सवाल करते हैं। तो मुझे से कहे, इसने माथे पर बल डालकर कहा कि मरियम ने अपना एक अलग स्टेटमेंट दिया था कि इससे इस शख्स से खतरा था। आने वाले वक्तों में अगर इसे कोई भी जानी माली नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार वो शख्स होगा, और अगर वो शख्स इसे मारने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो अपने कातिल के लिए एक ही सजा तजवीज़ करेगी। वो इसको बड़ा शाम से डसवाया जाए। नीचे अपना नाम लिखकर इसने कागज़ अफसर की जानिब बढ़ाया, जो ज़ेरे लब हंसते इस पागल लड़की का बयान कर रहा था। आखिरी लाइन पर इसने बामुश्किल अपना कहका रुका था। और वो ऐसे पागलों से रोज़ निपटने के आदी थे, और इस जैसे कई नमूने फिरते थे वहाँ। फिर इसके उठने से पहले इस लड़के को वहाँ ले आए थे। इसकी हालत अब बेहतर थी। मरियम ने नखुवत से मुँह फेरा। हाँ, मुझे ज़हरीली औरत कहा। अब तुम खुद कोबरा के ज़हर से मरोगे। अब तुम खुद कोबरा के ज़हर से मरोगे। इसने जानबूझ के मुझ में नमक मिर्च डाली, ये ज़हरीली औरत है। वो फिर से चिल्लाया था। मरियम जो उठने लगी थी, इसने बैग कंधे से उतार कर इसमें से एक बाल्टा निकाला। रुकिए, मैं एक सच्चाई साबित करके जाऊंगी। इसने बाल्टी के 2 हिस्से किए, फिर पूरी से मिक्सर निकाल कर इसे चटकियों में भरकर बाल्टी के दोनों हिस्सों पे लगाया। एक हिस्सा उठाकर अपने मुंह के करीब ले जाना कर निचोड़ा। आई, रस बहुत खट्टा था और मिर्च की तेजी इसकी जुबान पे जैसे आग लग गई थी, लेकिन वो जब्त से मुस्कुराई। देखा, हमारे यहाँ माल्टे ऐसे खाए जाते हैं। जुबान जल रही थी, फिर भी वो कुछ कहे मुड़ी। मिस, अपने माल्टे का दूसरा हिस्सा भी देती जाए। अफसर ने मुस्कुरा कर पुकारा। वो पलटी और जबरदस्ती मुस्कुराई, झुक कर माल्टे का दूसरा हिस्सा उठाया और तेजी से वहां से निकलने लगी। खुदा करे तुम सबके सब मर जाओ। वो बाहर निकलकर एक दीवार से हाथ टिकाए कर कोस रही थी, और मिर्चों ने जुबान का बुरा हाल कर दिया था। 3 दिन के बाद वो लड़का इसके फिर पीछे था। मरियम के बैग में हाथ जाते जाते देखकर वो चिल्लाकर इसके सामने आया। मत करो, मत करो। मैं अब चोरी करने नहीं आया, मैं तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ। तुम्हें किसने कहा था मेरी हिफाजत करो? इसने तीखे लहजे में पूछा। तुम जो वहाँ बयान दे के आई हो, इसके बाद तो मैंने आना ही था। ये नहीं तुम्हारी कहीं भी दुश्मनी चल रही हो, मगर नाम तुम मेरा दे आई हो। इसके बाद मैं अपने बचाव के लिए और क्या कर सकता था? यही कि तुम्हारी हिफाजत करूं, ना कि किसी मुसीबत में फंसो, ना ही चलाक औरत। मरियम अब रुककर इसे घूर रही थी। वो इससे उम्र में छोटा था, मगर तो तड़ाक के साथ बात कर रहा था। रूसी हो? नहीं, अज़रबैजान से हूँ। रूसी जुबान कैसे जानते हो? जैसे तुम। वो लड़का इससे डरा हुआ था। तुम्हें मेरे पीछे किसने लगाया था? तुम्हें मेरे पीछे किसने लगाया था? मेरी बदनसीबी ने। तुमने मुझसे आज़ादी भी छीन ली। मैं कहीं भी चला जाऊं और पीछे तुम मर गई, तो मुझको कोबरा सांप से डसवाया जाएगा। अब के मरियम को हंसी आ रही थी। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की लगती हो। मेरे खिलाफ कंप्लेन वापस ले लो। मैंने तो और काम करने हैं। हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। इतने बेवकूफ़ हो के बनने की कोशिश कर रहे हो।
तुम्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमीज से बात करो। और सर झुटक कर चिल्लाने लगी। एक तो उम्र में छोटे लोग जब तू तड़ाक करें तो दिल चाहता है कि एक थप्पड़ रसीद किया जाए कि इनके होश ठिकाने आए। अब वो भी इसके बराबर चल रहा था। मैयम ने रुक कर इसे देखा। इन्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। वो फिर से चलने लगी तो ढीठ फिर भी हम कदम रहा। 3 बजे का वक्त था। ट्रैफिक रवा दवा थी और वो पैदल चलने की कोशिश कर रही थी। अगले स्टॉप पर मेट्रो इस्तेमाल करने वाली चली थी। चलते चलते वो अब सूरज के सामने थी। इसने हाथ की आड़ बना ली थी कि धूप आंखों में ना जाए। वैसे मैंने तो सुना था पाकिस्तानी लड़कियां बहुत डरपोक होती है, लेकिन तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। किससे सुना है? इसकी ट्रैफिक का शोर था। मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था इससे। वो कहता था पाकिस्तानी लड़कियां काकरोच से डरती हैं, छिपकली देखने तो शीशे मार के भाग जाती हैं। सुनो, क्या तुम वाकई पाकिस्तानी हो? वो मशकूक अंदाज में से देखे जा रहा था। मरियम ने धूप से तंग आके बैग से सनग्लासेस निकाल ली थी। तुम न जाने किन जमानों की बात कर रहे हो। शायद सन 1880 में ऐसा होता हो। पाकिस्तान की लड़कियां बहुत बहादुर होती है, अपना हर काम खुद करती है। और डर, ये छुरी चाकू चलाना तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। कागज और छिपकलियां, ये चीज ही क्या है? हमें तो सांप से डर लगता है, ना मगरमच्छ से। पता नहीं तुम कौन से जमाने की बात कर रही हो। वो मरियम आलम थी जो अपने आप में लौट आई थी। लेकिन पाकिस्तान तो 1947 में बना था। इस लड़के ने जैसे इसका झूठ पकड़ा। मरियम ने कंधे उचकाए। यही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान में तो कभी डरपोक लड़कियां पैदा नहीं हुई। तुम शायद 1880 की बात कर रही हो। तभी तो पाकिस्तान बिना ही नहीं, तब तो पाकिस्तान बना ही नहीं था। तो ऐसी लड़कियां कैसी होती? इस जमाने में एशिया की लड़कियां सुना है ऐसे ही डरती थी। किसी भी छोटी सी बात पर बड़ी चीख मारती, फिर पूरे घर को उठाकर इकट्ठा करती। एक छिपकली देखकर रोना धोना। वो मजे से इसे बताई जा रही थी। और वो दिल ही दिल में अपने पाकिस्तानी दोस्त को कोस रहा था जिसने कहा था पाकिस्तानी लड़कियां बहुत डरपोक होती हैं। इसलिए वो 2 दिनों से इस लड़की का पीछा कर रहा था। कंफर्म कर रहा था कि वो अकेली ही है, फिर इसका बैग चोरी करेगा। क्योंकि पाकिस्तानी लड़की थी, चेक के बाद बेहोश हो जाती। मगर नहीं, इसके दोस्त पर लानत थी। इसने इसे गलत बयानी करके इसे फंसा दिया। वो इसे अपने पीछे आने की वजह बता चुका था, भूखा था, इसलिए इसे पैसे चाहिए थे। एक दिन मेट्रो में इसे देखा, लिबास से पहचान गया था कि लड़की पाकिस्तानी है। फिर इसे ही टारगेट करने का सोचा, क्योंकि आसान हदफ थी वो। इससे भी पहले वो चोरी का तजुर्बा नहीं रखता था, इसलिए सिर्फ 2 दिन इसका पीछा ही करता रहा। तुम क्यों आए हो रूस? वो 2 दिन अब मेट्रो में थे। वो दोनों अब मेट्रो में थे। मरियम ने जान लिया था कि वो लड़का इसके लिए पीछे रहा था, और अगर नुकसान पहुंचाने की गलती भी कर लेता तो कोबरा जिंदाबाद। चाचा के घर पला पड़ा था। इसकी बीवी ने चोरी का इल्जाम लगा के निकाल दिया। फिर पैसे कुछ नहीं थे। एक ट्रक में चुप कर यहाँ आ गया, और जेब खाली होने की वजह से फिर वो चोरी का सोचा था। इस लड़की ने चंद जुमलों में अपना दर्द बयान कर दिया था। तो मरियम ने इसे इतने पैसे दे दिए कि कई दिन से आराम से खा लेता, और ना चाहते हुए भी आदत से मजबूर होकर अपनी एक कुली की मदद से इसे स्टोर में जॉब दिलवा दी थी। इंसान जो भी कर ले, आदत नहीं बदलती ना फितरत। मरियम आलम ऐसे ही हमदर्द फितरत लेकर पैदा हुई थी। दूसरों के गम सुनकर अपना दुख भरे मुश्किल दिन भुला दिए। हाँ ठीक है, इसने एतबार नहीं किया था, मगर इसकी मदद करने से खुद को भी नहीं रोक पाई थी। वो अपने आप में लौट आई थी। हाशिर मरियम को छोड़ के फिर से पुलिस के आईटी डिपार्टमेंट में आ गया था। आज फिर नई फाइल्स खुल रही थी। इसके साथ पकड़े जाने वाली लड़कियां के डिवाइसेस भी कुछ लेकर रहा था। वहाँ बैठ मर्द हैरान थे कि औरत इस हद तक भी गंदगी में जा सकती है। वजह कुछ भी रही हो, ये जुर्म तो नाकाबिले माफी है। बाकी लड़कियों के लिए कोई आया नहीं था। हैरत अंगेज तौर पर वो सब लड़कियां लावारिस थी। पुलिस इनसे पूछ पूछ कर थक चुकी थी। फिर इसके बाद पुलिस ने 1-2 और जगहों पर छापे मारे थे। मर्द के साथ बहुत सी खवातीन भी पकड़ी गई थी। एक नए आने वालों में से बोल पड़ी थी, ये सब मरियम आलम के कहने पे होता था। वो इतनी मार खाने के बाद अपना मुंह खोल चुकी थी। हाशिर तो पागल हो गया था। वो अंदर जाके इस औरत का मुंह तोड़ना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने इसे बाहर भेज दिया था। अब बताएं मीर साहब, अब गवाहियां भी मिलने लगी हैं। एसपी तन से इसे देख कर कह रहा था, पूरी दुनिया भी खड़ी होकर कहे, मैं तब भी नहीं मानूंगा। ये जुर्म इसने किया है। मैं इंसानों को इतनी पहचान रखता हूँ कि इनके चेहरों के पीछे छुपी असलियत जानूं। 7 माह 7 माह तक वो मेरी बीवी रही है। अगर
اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے پتا چل جاتا۔ صحیح بات تو آپ نے خود کہہ دی ہے، صرف 7 ماہ اسے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہو، آپ کی معاشی حیثیت کو دیکھ کر آپ کو بھی پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ ایس پی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اسے میری آخری وارننگ سمجھو، یاد رکھو، وہ عورت جب تک میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اب تک اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا بہت اثر رسوخ ہے اور اس سے پنگا لینے کا مطلب اپنا خاندان تباہ کرنا تھا۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں لے جا کر مارتا تو بچانے کسی نے بھی نہیں آنا تھا۔ حاشر اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اسے کسی طور سکون نہیں تھا۔ خدا جانے زندگی میں کون سکون پھر کب آنا تھا۔ زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی۔ یوں تھا کہ جیسے کسی نے زندگی کے پرسکون تھال کو الٹ کر رکھ دیا ہو۔ وہ چیز بکھر رہی تھی، ہر چیز بکھر رہی تھی، اس کا دل جل رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ اپنے خاندان کو نہیں بتا پایا تھا، نہ بتانے کی ہمت تھی۔ اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پر لگے جھوٹے الزامات کی بھینک بھی کسی کو پڑے، مگر یہ ناممکن تھا۔ ایک ماہ کے اندر بابا جان کو پتہ چل گیا تھا، ان کے اپنے ذرائع تھے، پھر اس کے باقی بھائیوں کو بھی اپنے مختلف ذرائع سے پتہ چل گیا تھا، اور وہ خاندان کے سارے مرد سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ حاشر دونوں ہاتھوں سے انگلیاں باہم پسائے بہت بے چین بیٹھا تھا، تو سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ اس کا ایک بھائی بول اٹھا، ادا، ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ کو پھنسانے آئی ہو، ایسے بھی تو کئی واقعات ہیں دنیا میں۔ حیدر، وہ ضبط سے اسے دیکھنے لگا، حیدر تم چپ رہو، اسے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا۔ حیدر چپکا ہو گیا، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے 7 ماہ ملنے والی لڑکی ہو سکتا ہے جان بوجھ کے ٹکرائی ہو، ان کے خاندان کا نام خراب کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑا ہو، مگر وہاں تو کوئی سے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ستیرے بھائی نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ عاشر نے اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ خواتین تک یہ بات نہیں جانی چاہیے، اٹھنے سے پہلے اس نے آخری بات کہی تھی۔ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا، ان کے گھر کی عورت یوں تھانوں میں نام آیا تھا، اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور اگر جرم کی نوعیت کوئی پوچھ لیتا تو پھر موت تھی۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غیر کا کیا معلوم کیسے ہوں، وہاں بیٹھنے ہر شخص کی اپنی رائے تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اسی کا خاندان کا حصہ تھا۔ ان کی بھی عزت تھی۔ وہ نینا اور ناز اب جب اگلے سیمسٹر کے لیے وہاں پہنچی تو حاشر انہیں ہاسٹل جانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کے قدر الگ حصے میں دونوں کے لیے روم سیٹ کروا دیا، اور جن دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بھائی شادی کی تاریخ آگے کرنے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ جب اماں بھی کہتی کہ چلو اب شادی کی تاریخ لینے چلے اور وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیتا، ابھی شادی کے لیے ٹائم نہیں، بابا جان بھی ان کا ساتھ دیتے۔ ان کے ہاسٹل کی ایک لڑکی مل گئی تھی جس نے بتایا بھائیوں کو پولیس سے گئی، بہت گندے الزام لگا رہے تھے اس پہ کہ وہ اچھی نہیں، اور بولتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہوتی گئی۔ اس کی بات کے بعد نینا نے اسے وارن کیا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مریم ایسی تھی، اور اگر تھی تو ان کے خاندان سے جڑی تھی۔ یوں ہر دوسرا شخص اگر اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتا رہتا تو ان کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ ایک بات تو بچپن سے ان کے گھٹی میں ڈال دی گئی تھی، اپنے خاندان کی عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہے، ذاتی اختلافات کے باوجود باہر کے کسی شخص کو اپنے خاندان کے فرد پہ بات نہیں کرنے دینی۔ وہ لڑکی اس کی وارننگ سے ڈر گئی تھی۔ میری بات سنو، دوبارہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گی، سارے ہاسٹل کو پتا ہے، یونی کو پتا نہیں ہے، اور اگر کسی کو بھی دیکھ لو، اگر اس نے بھی کہیں اور جا کر سرگوشیاں کی تو میں اسے بتا دوں گی نینا میر کس کو کہتے ہیں۔ غور سے سنو، مریم عالم میری بھابھی ہے، میرے خاندان کی عزت، جو میرے خاندان کی عزت کو سرعام اچھالے گا پھر اس کی اوقات اس کو بتا دی جائے گی۔ اپنے منہ سیلو، جا کر سب کو بتا دو جنہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ان دنوں وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، حاشر کو بلایا تھا، انہیں گھر جانا تھا۔ ناز چپ تھی، جبکہ حاشر لینے آیا تو نینا کے پوچھنے پر ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ انہیں کس نے بتایا؟ پھر پوری بات پتہ چلنے پر حاشر لب بھیج کر رہ گیا۔ اس نے تھانے سے نام نکلوا لیا تھا جو دیکھ کر ان کی زبانوں کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ادا، آپ فکر نہ کریں، یہاں یونی میں دیکھ لوں گی۔ حاشر نے محبت سے بہن کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایسی محبتیں نایاب ہوا کرتی ہیں، بہت نایاب۔ وہ مریم کے لیے اس لیے لڑ کر آئی تھی کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ جن سے محبت ہو ان سے منسلک لوگوں سے بھی محبت رکھنا، بس
इस सब की बात नहीं होती, मगर ये इनके खानदान का शेवा था। इतनी टेंशन भरे दिनों में बस यही एक अच्छी बात हुई थी। आपकी भाभी से बात हुई? वहाँ तो आपको पता है मोबाइल नहीं होता हमारे पास, कोई राब्ता नहीं हो सका। नहीं, इनका मोबाइल यही है, इसके घर वालों से राब्ता है, ठीक है वो। फिर बहनों को घर ड्रॉप करके वो ऑफिस आ गया था। और फिर ये हुआ कि इनके खानदान में ये बात फैल गई थी। हाशिर तो गुस्से से पागल होने को था। अम्मा, अतीस, ज़ारा, रुकैया सब इधर आन पहुंची थी। वो नैना से पूछ रहा था, घर वालों को किसने बताया? वो भाई के गुस्से को देखकर डर गई थी। आज तो थर थर कांपने लगी थी क्योंकि इसने सिर्फ अपनी माँ को बताया था। इन्होंने फट से स्वतन को ताना दे डाला और अजीज ज़ारा को भी बता दिया। फिर रहा क्या था, घर की औरतों से लेकर मुलाजमाओं तक बात फैल गई। इनसे फिर इनके पूरे खानदानी इलाके में कोई इनके पास अफसोस के लिए आ रहा था, कोई ये बताने के लिए कि इन्हें यकीन नहीं आया। सोचा खुद जाके पूछे। हाजा बीबी तो रोने लग गई। फिर अपने सुतीले बेटे के हमरा वो सब इस्लामाबाद आई थी। ये काम बस 2 दिन में हुआ था। सही बात है, औरतों से ज्यादा तेज सर्विस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। हाल ये कि गोली अंदर और दम बाहर। हाशिर तो वैसे ही मसरूफ था, बिजनेस को तो सिरसरी देख रहा था आजकल, लेकिन फिर भी ऑफिस जा रहा था। वहां से पुलिस स्टेशन सियासी कामों को स्टॉप किया हुआ था। इसे खबर नहीं हुई औरतों ने क्या काम कर दिखाया है। जब खबर हुई पानी सर से ऊंचे जा चुका था। इलाके के कमी कमीन भी इसकी बीवी पे बातें कर रहे थे। दबे लफ्जों में ही सही, इसकी बीवी का नाम मर्दों में आ गया था। वो मर जाने को था, ये आखिरी हद थी। वो अपने कमरे में दोनों हाथों में सर दिए बैठा था। बस आंसू नहीं छलके थे, बाकी तो कोई कसर नहीं रह गई थी। मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा मिल रही थी, इतनी जिल्लत और रुसवाई। फिर नैना ने आकर बताया था कि नाज ने अपनी अम्मा को बताया था। फिर इन्होंने जानबूझ के पूरे खानदान में और नौकरों में बात फैला दी। नैना का चेहरा सता हुआ था, वो रो रो कर आई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि नाज इनके साथ ऐसा कर सकती है। नाज रोज आ रही थी कि इसे क्या मालूम था कि इसकी अम्मा बात को इतना फैला देंगी। सौतन को नीचे दिखाने के लिए अपने बहुओं को साथ बिठाकर घर की नौकरानियों के इसी कमरे में मुख्तलिफ ड्यूटियां लगाकर इन्हें हाजा बीबी को खूब जलील किया। मकसद बात फैलाना था। देखो मेरी बहुएं अच्छी हैं, तुम गैरों तक चली गई मगर गंद उठा लाई। हाशिम दोनों टांगों को मुसलसल हरकत दिए जा रहा था। नैना भाई को बताकर सब कहते बाहर आ गई थी। इनका खानदान बर्बाद हो चुका था। इसके सरदार भाई की पग मैली हो गई थी। इनके खानदान की औरतों के नाम तो बाहर पता ही नहीं चलते थे। आज नाम के साथ नके दाव पे बाहर चली गई थी। बस इसी को मौत कहते हैं। क्या मौत इससे ज्यादा बदसूरत हो सकती है? वो कमरे में आकर फूट फूट कर रोती थी। अम्मा इसी कमरे में आई तो इनकी हालत भी खराब थी, रोई रोई आंखें थी। वो इन्हें देखते उठ बैठी थी। नैना, मेरी बेटी को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया इसने। इसकी हालत नहीं, मुझसे इसके चेहरे पर नहीं देखा जा रहा। मेरा दिल फटा जा रहा है। क्या हो गया हमारे साथ? इनके घर का मौत का समा था, जैसे कि किसी की मैयत घर पड़ी हो और घर वाले तकलीफ के मारे रो रो कर थकते हों। अम्मा भाभी ऐसे नहीं है, इनको किसी ने फंसाया है। वो माँ का हाथ थाम कर बोली। अरे बाहर में जाए जैसी भी है, मेरे बेटे से तो मंसूब ना होती। वो रुकैया का बेटा बाहर कह रहा था सब सबूत इसके खिलाफ है, बस हाशिर ही नहीं मान रहा। इनके पास सिर्फ आंसू थे और वो बहने लगे थे। कितनी बार मना किया था सुतेली बहन से हमदर्द ना, सुतेली बहन हया को ना समझो। मौका मिला और वारदात कर दी इसने। और सब बार मेरे बेटे को कसूरवार कह रहे हैं। अति सारा कहती है मेरी आह लगी है। तुम्हारा बेटा कभी खुश नहीं रहेगा। अपनों को छोड़कर गैरों में भागी थी, अब सिला मिल गया। इनका रोना जारी था। आशिर ने नाज को अपने सामने आने से मना कर दिया था। नैना ने अपने कमरा इससे अलग कर लिया था। अब कोई फायदा नहीं था बहन आपा जोड़ने का। वो अपना वार कर चुकी थी। रिश्ते फिर से बिछड़ रहे थे। मगर सबसे अच्छा ये था कि वो तीनों सखे बहन भाई इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े थे। भले मरियम मुझे निकलती, मगर वो किसी के लिए भी अपने भाई को नहीं छोड़ सकते थे। हाशिर अपनी मसरूफियात की वजह से एक अहम मामले पर बैठने वाली जगह का हिस्सा नहीं बन पा रहा था, लेकिन आज वो शिरकत करने के लिए जा रहा था क्योंकि आखिरी फैसला इसी ने करना था। नैना और नाज को वो अकेला नहीं छोड़ता था। दुश्मनों का कुछ पता नहीं था कब आ गए थे। नाज ने गाड़ी में इससे बात करने की कोशिश की। हाशिर आंख उठाकर देखा था, वो नजर झुका गई। वो अब कभी इसे नहीं मानने वाला था। जो भाई की इज्जत नहीं रख सकी थी, इसका दोबारा क्या एतबार करना।
दूसरा चांस देने का आदी नहीं था वो। सफ़र खामोशी से कटा था। इन्हें हवेली छोड़कर वो सीधा जिरगे में आ गया था। बाबा जान और इसके भाई पहले पहुंच गए थे और जब जिरगे का फैसला मुखालिफ पार्टी के खिलाफ किया था तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था कि मीर हाशिर के सामने बैठकर इसके फैसले को चैलेंज किया जा रहा था। और हद तो तब हुई कि जब वो इसकी ज़ाती ज़िंदगी पर उतर आए और इसकी बीवी को ताने देने लगे, तुमसे अपनी बीवी तो ना संभाली गई, हमारे फैसले क्या करोगे? सुना है बड़े-बड़े काम करती है तुम्हारी बीवी। हाशिर तो होश खोने लगा था। इसके भाई बाबा जान सब उठ खड़े हुए थे। मीर हाशिर ने आगे बढ़कर इस आदमी को इतना मारा कि हद नहीं। इसका जुनून देखकर मुखालिफ पार्टी ने बंदूकें निकाली। यहाँ इसके भाइयों ने और कबीले वालों ने इन पर बंदूकें तान ली थीं। मर्दों के बीच घर की औरतों का जिक्र कौन बर्दाश्त करता है? बर्दाश्त करने वाले करते होंगे, मगर एक बलोच नहीं करता। हाशी ने एक भाई के हाथ से पिस्टल लेकर इसे हवा में खाली कर दिया। अंदर की आग फिर भी नहीं बची थी। इसे कुत्तों के आगे डाल दो। आखिरी ठुड्डा मारकर इसने अपने एक मुलाजिम को इशारा किया। फिर हाशिर इसे छोड़ दो। मीर हाशिर इसे छोड़ दो वरना जंग होगी। मुखालफों से एक जोशीले ने आगे बढ़कर इसे वार्निंग दी। अगर जंग है तो मैं भी अभी मैदान में खड़ा हूँ। इसे भूल जाओ कि ये कभी पैदा भी हुआ था। इसने दूसरे भाई के हाथ से मुड़कर एक और पिस्टल ले लिया और इसे इस जोशीले नौजवान पर तान लिया। क्या कर रहे हो मीर? छोड़ दो, जाने दो, बात को क्या बढ़ाना। इनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर कहा। इसके भाई इसी तरह पोजीशन संभाले खड़े थे। वो जिंदगी में जो भी कर लेते, जिस भी मकाम पर चले जाते, कुछ भी चीजें नहीं बदलती। वो सब लड़ने मरने को तैयार खड़े थे। फिर भाई महफिल में इन्हें घर की औरत का ताना दिया गया था और जान देने से कम पर कैसे राजी होते। अपने इस नौजवान को समझा दो, मर्दों का काम नहीं होता कि लड़ते वक्त औरतों की बात ही नहीं आए। ये कमी छोटे लोग होते हैं, इसकी तरबियत में कमी रह गई है। अगली बार मर्दों की महफिल में लाओ तो आदाब सिखा कर लाना। कहीं ऐसा ना हो कि कमीन कौन है, ये सब कहें कि कमीन कौन है। फिर इसने आगे बढ़कर इस नौजवान के सीने पर जाकर पिस्टल रखा और इसे एक दो बार इसके सीने पर ठोका। अगर जिंदगी में दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो याद रखना, तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। इज्जतें सबके घर में होती हैं, हर घर के मामलात होते हैं। अनजान नहीं हो मैं किसी भी मामले से। अगर नहीं बोलता तो ये कि मर्दों का शेवा नहीं। लेकिन पहली और आखिरी बात बता रहा हूँ, याद रखो औरतें सबकी होती हैं। हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है। वो शेर की तरह ढा रहा था। इसके अल्फाज को सबने खुले कानों से सुना था और दिमाग में बिठा लिया था। इसके छुपे अल्फाज के मफहूम को सबने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब वो मर कर भी ऐसी बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर घर में औरतें होती हैं और हर घर की एक कहानी होती है। घर आकर आगे रुकी बीबी ने इसे देखते ही ताना दिया था। इसे माँ के साथ खड़ा देखकर रुकैया बीवी के बेटे इनके साथ आ खड़े हुए थे। हाशिर, इसके भाई ने वार्निंग के अंदाज में कहा था। एक तमाशा बाहर लगा था, एक अंदर लग चुका था। मुलाजमाओं ने अपने काम छोड़कर इधर देखना शुरू कर दिया था। किसी ने जाकर हाजा बीबी को बुला लिया था। रखी, जाओ सबको बुला लाओ। हाशिर ने इनसे निगाह हटाकर एक तरफ खड़ी मुलाजमा को हुक्म दिया था। थोड़ी देर में वहां सब जमा हो गए थे। आप सब मेरे खानदान का, मेरे घर का हिस्सा है। मेरे लिए आपकी इज्जत मेरी अपनी इज्जत है। इसी तरह मेरी इज्जत भी आपके लिए अपनी इज्जत होनी चाहिए। मरियम मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, यानी मीर हाशिर की इज्जत। वो मुझसे अलग नहीं। इस पर कोई बात करने का मतलब मीर हाशिर पे बात करना है। और मीर हाशिर वो रुका। वो अच्छी तरह से जानता है कि गैरत पे उंगली उठाने वाले का क्या अंजाम करना चाहिए। जा सकते हैं सब। वो अपने कमरे में आकर अंदर की खौलन कम करने की कोशिश कर रहा था। ये मोहब्बत इंसान को कितना जलील करवा के रख देती है। या फिर ये कहीं है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। भले शेर ने किसी और सूरत पे हाल पर कहा होगा, मगर ये मीर हाशिर को अपना हाल लग रहा था। अम्मा अंदर आई तो कुर्सी पर बैठा सोचों में गुम था। माथे पे तफक्कुर की लकीरें थीं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए पूरी पे तले टिकाए हुए था। कोहनियां दोनों टांगों पर टिकी हुई थी। वो यकीनन बहुत जब्त पैदा था। कमरे में कोई भी चीज बिखरी नजर नहीं आ रही थी। अम्मा को तो एक लम्हे को लगा था जैसे कमरे हाशिर का बिगाड़ देगा, वो कमरे का हाशिर बिगाड़ देगा। मगर वो जैसे अपने गुस्से को अपने अंदर ही खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो हौले से चिढ़ते हुए इसके साथ रखी कुर्सी पे आ बैठी। वो इन्हें देखकर चौंका और सीधा हुआ बैठा। कैसे हो?
उनके लहजे में मोहब्बत थी, हाशिर का दिल चाहा देखकर अपने बहुत अपने कह दे कि मैं बहुत बिखरा हूँ। ठीक हूँ, ठीक हूँ। इसने कैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। अम्मा इसे देखती रही। इसे ज़माने से जंग ले रही हो, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसकी आँखों में सख्ती उभर आई थी। अम्मा, इसे तहम्मुल से अम्मा की तरफ रुख किया। तुम मेरी बीवी है, मेरी ज़ात का दूसरा हिस्सा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इस पे बुरा वक़्त आया है, तो इससे पीछे छुड़ा लूँ? अगर मैं इससे ये तवक्का रखता हूँ कि वो मेरे अच्छे बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे, तो फिर ये असूल मुझ पे भी लागू होता है। जिस पर इतना यकीन कर रहे हो, अगर वो गलत निकली, अगर वही मुझसे में निकली तो? अम्मा ने इसके दिल के एक कोने में पलते रहे को ज़ुबान दे दी थी। वो इतने सबूत देख चुका था कि इसके बेकसूर निकलना मुआवज़ा ही होता, और वो इस मुआवज़े के लिए ही सारी कोशिशें कर रहा था। लेकिन दिल के एक कोने में डर बैठ गया था, अगर वो मुझसे निकली तो? वो मोहब्बत के भरोसे, वो यकीन के पुरसिरात पर चल रहा था। पुरसिरात कब आसान हुआ करती है। अगर इसका यकीन झूठा निकलता तो ऐसा गिरता कि फिर इसका नामो निशान भी ना मिलता। वो सही कह रहा था, अपनी ज़ात के लिए जंग लड़ रहा था। एक ज़माने से इस लड़की के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहा था। वो इसे अपनी ही ज़ात तो रखती थी। अम्मा, जीतने के यकीन के साथ इस जंग में घुसा हूँ। हारने का डर मगर जीतने का यकीन है। बाकी सब रब के हाथ में है, इसकी रज़ा में राज़ी हूँ। इसने भी अब भी ज़ब्त के दामन को नहीं छोड़ा था। इस समय अम्मा को अपनी बहू पे रश्क आया, जिसके हिस्से में ऐसा बावफा मर्द आया था। वरना मर्द ज़ात तो वो है कि शक का बाल आ जाए तो घर खराब कर लेते हैं, और जिंदगियां भी। और वो हर रोज नए सबूत देखकर कैसे कैसे ना टूटता होगा, मगर फिर भी अपनी बीवी पर पूरा यकीन कर रहा था। लोग कहते हैं वफा सिर्फ औरत का शिवा है। कोई आकर मीर हाशिर को दिखता, वो किसी औरत से भी ज्यादा बुरे हालात में अपने साथी से वफा निभा रहा था। वरना इनके शौहर ने तो बिना किसी वजह की इनकी मोहब्बत को कुछ सालों में भुला दिया था। इन्हें खुद पे फख्र हुआ कि एक ऐसा बेटा पैदा किया था। वह इन माओं में से नहीं थी जो बहू को सख्त सुनाकर अपना भड़ास तो निकाल लेती है, मगर अपनी औलाद का दिल दुखा जाती है कि जिनसे इन्हें मोहब्बत है, इनकी माँ को इसकी कदर भी नहीं। वो बेटी के लिए ज़ेरे लब दुआएं करती उठ खड़ी हुई। खुदा करे वो लड़की बेकसूर निकले। हाशिर ने रात होने से पहले वही वापसी का कष्ट किया था। सुकून कहीं नहीं था। एक दिल चाहता मरियम से जाकर मिलकर आए, मगर वो सिर्फ मनकुहा थी, बीवी नहीं। इन बातों की बात पता नहीं इसके अब्बू इजाजत भी देते कि नहीं, मगर ये अब मुमकिन नहीं था। मगर अपना इराद सिर्फ मरियम का दीदार लग रहा था। हाँ, सिर्फ मरियम का दीदार लग रहा था। जिसम में फिर से नई एनर्जी आती, टूटती उम्मीदें फिर से जुड़ जाती, मगर ये अभी मुमकिन नहीं था। इतने महीनों से इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। कभी कभी वो खुद भी अपनी मोहब्बत पर हैरान होता था। मरियम को इससे इतनी मोहब्बत नहीं थी, मगर इसकी मोहब्बत हर रोज़ ऐसे पहले से बढ़कर होती जा रही थी। वो महसूस कर रहा था, मोहब्बत की ऐसी सीधी तरफ बढ़ रहा था जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अगर यकीन टूटता तो वो भी टूट जाता। इन सब बातों का इदराक रखने के बावजूद भी वो अपने दिल के हाथों बेबस था। मोहब्बत बिन कैद इंसान को बेबस कर देती है। वो बचाव के हर मुमकिन रास्ते को देख रहा होता है, मगर फिर भी इन राहों पर चलने का ख्वाहिशमंद नहीं होता। वो अपने अंजाम को देख रहा होता है। जरा भी पाँव फिसला, हंसती गिर जाएगी, मगर फिर भी वो खुश गुमानी के परिंदे का ताकुब करते कांटों भरी राह पर चलता ही जाता है। अपनी राह पर खुश नसीबों को कामयाबी मिलती है, वरना मजनू और आंधे बनकर तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। वो ऐसा शानदार और कामयाब मर्द सिर्फ अपनी मोहब्बत के भरोसे ही खड़ा था। एक जमाने के मुखालफत मोल लिए इसके लिए लड़ रहा था, जिस पर अब इसके घर वाले भी भरोसा नहीं करते थे। जहाँ वो पैदा हुई थी, पली बड़ी थी, सारी जिंदगी इनकी आंखों के सामने गुजारी थी। सिर्फ 2 साल, 2 साल इनसे ओझल गुजरे थे, और इन 2 सालों की ही वजह से वो इनके लिए मुजिब बनती जा रही थी। अगर इनकी आंख से ओझल कुछ ना कुछ गिरती रही होगी, वो तो वहां नहीं थे, कैसे गवाही देते? एक वक्त के बाद वो थकने लगे थे, इनके यकीन झटकने लगे थे। अगर मोहब्बत दुनिया का सबसे अनोखा मुआवजा है, वो सारी जिंदगी इससे दूर कहीं एक अलग दुनिया में रहती। मगर जब इससे इसे देखा था, जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी थी, बल्कि रात का हिस्सेदार बन बैठी थी। अब हर सबूत के बाद वो सच्ची लगती थी। ऐसे मुआवजे सिर्फ मोहब्बत के नसीब में होते हैं। आज 6 माह होने को आए थे।
اس کے ساتھ کام کرنے والے افسر بھی تھک گئے تھے، بس بہت ہوا۔ وہ قانونی ملزم تھی، اب اسے قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حاشیے کے دل میں اب صرف امید 1% بچی تھی، اور وہ وقت آخر اس کی روتی آنکھوں کے ساتھ بولا جانے والا جملہ میں نے نہیں کیا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے وکیل کو کال کی، پھر اگلے دن وہاں جا کر اسے پیپرز تیار کرنے کا کہا۔ آر یو شیور میر صاحب؟ وکیل نے آخر بار کنفرم کیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ طلاق کا حق اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو 99 فیصد حصے سے لڑ کر یہاں بیٹھا تھا، مگر 1% حصے کے سہارے۔ اسے ڈر لگ گیا تھا کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ سدباب کر رہا تھا اپنے ناقابل تلافی نقصان کے لیے۔ ان 6 ماہ میں اس کے گھر والے بھی تھک گئے تھے، بابا، اماں، جائزے پر نینا۔ باقیوں کی وہ سنتا ہی کب تھا۔ پھر اس نے اس سے خط لکھا تھا۔ اب رابطے کا بس یہی ذریعہ تھا، مختصر سا خط۔ میں خود سے ڈر گیا ہوں، کہیں ان ثبوتوں کی وجہ سے میں خود سے ڈر گیا ہوں کہیں ان ثبوتوں کی وجہ سے جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ ہاں، تم چاہو تو مجھ سے الگ ہو سکتی ہو، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں خود سے الگ کروں۔ اس خط کے ساتھ اس نے پیپرز اس کے گھر بھیج دیے تھے۔ اس سے تب بھی پتہ نہیں تھا کہ مریم گھر والوں کو کیا جواب دے چکی ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار اب مریم کا آخری جملہ گونج رہا تھا، میں نے نہیں کیا۔ وہ چونک گیا۔ وہ ہر بار یہی کہتے کہ میں نے نہیں کیا، ایک بار یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے کیا۔ وہ اسے اپنی ساری گفتگو کو پھر سے یاد کر رہا تھا۔ دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ ٹھیک طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ اصلی مجرم کو جانتی تھی؟ کیوں اس نے نہیں بتایا؟ وہ الجھ رہا تھا۔ مجرم کو جانتی تھی تو چھپایا کیوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس امکان کو رد کیا۔ اس کی دوست، اس کی روم میٹ، وہ کہاں گئی؟ اسے ایک دم سے جیسے کچھ کلک ہوا تھا۔ شروع میں ان کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ ہر پکڑی جانے والا کہتا ہے کہ مریم عالم سپروائز کرتی تھی۔ اپر ہینڈ تو پھر بھی کوئی اور تھا، مگر بہت سی قریبی ساتھی وہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کے بعد صرف مریم کی ذات تک ہی الجھ کر رہ گیا تھا، ہر دوسرے بندے پہ شک کیا تھا۔ اس کی دوست کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ ایک بار آیا تو اس نے خود کو رد کر دیا۔ وہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اپنے گھر کے مسئلوں میں الجھی ہوگی، اس معاملے میں اسے کیوں گھسیٹ کے رہنا؟ اف، اسے سر پہ ہاتھ مارا۔ انہوں نے ہر بندے کو چیک کیا تھا، بس اسے ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا کر پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچا تھا۔ تھکی ہوئی ٹیم اس دیوانے کے یقین کو اب بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں وہ لوگ بھی متاثر ہوئے تھے، بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، مگر اب وہ تھک چکے تھے۔ وہ اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کر رہے تھے، پہلے بھی کیے تھے، مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا تو سامنے کی چیز بھی اوجھل لیتی۔ مریم کے اکاؤنٹ میں ہر بار باہر سے بہت سی اماؤنٹ آتی تھی، لیکن اگلے دن وہ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرتی جاتی تھی۔ وہ اکاؤنٹ اس کی دوست رضا کے نام پر تو نہیں تھا، مگر حاشر کو یقین تھا وہ اس کی دوست رضا۔ انہوں نے پکڑی جانے والی لڑکیوں کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز چیک کی تو مریم کے پاس رقم کے 2 دن بعد ان سب کے اکاؤنٹ میں ان کے حصے منتقل کر دیے جاتے تھے۔ اب جو یہ بیچ والا اکاؤنٹ تھا، اس کی ساری ڈیٹیلز نکلوا رہے تھے۔ اسی اکاؤنٹ کے تھرو پھر وہ رقم سب میں بانٹ دی جاتی تھی۔ اسے کاروبار کرنے والے بیوقوف نہیں ہوتے کہ یوں بینکوں میں اپنے ثبوت چھوڑے جائے۔ اس سب کا صرف ایک مطلب تھا، پولیس جو کب سے ان کے پیچھے تھی، انہیں مجرم چاہیے تھا۔ انہوں نے پوری پلاننگ سے ایک لڑکی کو ٹارگٹ کیا تھا۔ انہیں بھی اندازہ تھا پکڑے جانے کے بعد بینک اکاؤنٹس تک کنگالے جائیں گے۔ وہاں بھی وہی مجرم تھی، اتنی پرفیکشنسٹ، دراصل بدصورتی پیدا کرتی ہے۔ جو لڑکی اگر اتنی ہی مجرمانہ ذہنیت کی حامل تھی تو اپنے اصلی نام کے اکاؤنٹ کو کیوں استعمال کرتی؟ اب سوال یہ تھا کہ اس نے کسی کو اجازت دی تھی کہ اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کرے، یا پھر یہ اسی میں نہیں معلوم تھا کہ ان سوالوں کے جواب یا تو مریم دے سکتی تھی یا خود اصلی مجرم۔ چیزیں سامنے آ گئے پھر سے الجھنے لگی تھی۔ کال ریکارڈز میں اس کی آواز، اور کئی بار چیک کرنے کے بعد بھی وہ اصلی ریکارڈنگز ہی نکلنی تھی۔ نہیں، اتنی پرفیکشن کوئی کسی کو پھنسانے کے لیے ہی پیدا کر سکتا ہے۔ مریم کا موبائل آن کر کے وہ رضا کے نمبر پر کال کر رہے تھے، ہر بار بند ہوتا۔ اگر وہ لڑکی اس کی واقعی دوست تھی تو نمبر کیوں بند کیا؟ سم کے ذریعے ایڈریس نکلوایا تو حسب کا غلط نکلا۔ حاشر کے اندر جان لوٹ آئی تھی، پھر سے پرجوش ہو چکا تھا۔ یقیناً یہی لڑکی گنہگار تھی۔
ایک نئی انرجی کے ساتھ اب وہ سب کام کر رہی تھی۔ مریم اور رضا کی کالز کو اب سنا جا رہا تھا، ایک لفظ غور سے، ایک لفظ غور سے۔ ضروری نہیں کہ اس نے مریم کا موبائل ہی استعمال کیا ہو سکتا ہے سم نکال کر اپنے موبائل میں لگاتی ہو، کیونکہ مریم کے موبائل میں تو کوئی ڈیوائس سے چپ نہیں لگی۔ ایک لڑکی نے ایک دم سے سب کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر ان کالز کی ایک ایک لفظ کے چھانٹنے کے بعد انہوں نے رضا کو پہچان لیا تھا۔ اس کے الفاظ کی ادائیگی سے حاشر خوشی سے رو دینے کو تھا۔ وہ ہنستے ہنستے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ کتنی دنوں کی محنت رنگ لائی تھی، کتنی دیر آسمان کو تشکر بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ او اللہ، شکریہ پیارے اللہ۔ وہ ہنسا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اور پھر ہر گہری سانس لے کے وہ واپس اندر آ گیا تھا۔ تبھی صرف ایک کلو ملا تھا۔ اب پوری ٹیم کو یقین تھا کہ بہت سے ثبوت ملیں گے، اور ثبوت نہیں تو وہ لڑکی مل جائے گی، اسے قرار کروا لیں گے۔ رضا کی تلاش جاری تھی۔ حاشر دوست اس کے نمبر پہ کال کرتا، ایک دن میں کئی بار، شاید وہ سم بھی آن ہو جائے۔ پھر اس نے اس نمبر پہ میسج کی تھی، مریم کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ آج کل کی مہمان ہے، میں اس کا شوہر، اس نے تم سے رابطہ کرنے کا کہا ہے۔ جانے نمبر آن ہوتا کہ نہیں، اور کیا معلوم وہ اس کو پڑھ کر رابطہ کرے کہ نہیں، کہ ایک دن کسی اور نمبر سے حاشر کو فون آیا تھا۔ رضا تھی، وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا ہوا مریم کو؟ اس کی پریشان آواز محتاط تھی، بہت بیمار رہتی ہے، ڈاکٹرز نے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ حاشر نے اس ایس پی کے کہنے پہ اس جھوٹ کو گھڑا تھا، اسے تو وہ ہاتھ آنے سے رہی۔ پھر اس نے لوکیشن تو اس نے نہیں بتائی، اس نے کہا کہ وہ ہاسپٹل ملنے آئے گی۔ حاشر نے ایک ہاسپٹل کا کہہ دیا تھا، اور 3 ماہ بعد وہ قدر محتاط سی وہاں آتی دکھائی دی تھی۔ ہاسپٹل کے چپے چپے کو روک کر کو کور کیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ پائے۔ پھر ایک روم میں نقلی مریضہ کو دیکھ کر وہ جذباتی ہوتے آگے بڑھی تھی۔ روم کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ اب ایک اندھیرے کمرے میں بندھی بیٹھی تھی، صرف منہ کھلا تھا۔ حاشر کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ، کیوں کیا تم نے؟ پولیس میں سے اب کوئی سامنے نہیں آیا تھا، اتنا تو پتا تھا کہ وہ مریم سے محبت کرتی تھی، تبھی دوڑی چلی آئی۔ اب اسے اسی کے ذریعے جذباتی کر کے ہی کچھ اگلوایا جا سکتا تھا، ورنہ پھر پولیس اپنا کام کرتی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مریم کہاں ہے؟ اب کیوں مریم کتنی فکر ہو رہی ہے اسے اتنا برا پھنسا کر؟ میں کیوں پھنساؤں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ صاف انکاری تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، وہ مر گئی ہے، حاشر نے سر لہجے میں کہا۔ کیا؟ کیسے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ اس پہ کچھ غلیظ الزام لگے تھے، اس لیے اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ تب تک حاشر کو نہیں معلوم تھا کہ وہ واقعی یہ ہو چکا ہے۔ اس نے پیپرز بھیجنے کے بعد وہاں رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہاں سے کیا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ دن رات اس قدر مصروف رہتا تھا کہ سونے کو بھی وہ مشکل چند گھنٹے ملتے تھے۔ اس بات کے بعد وہ تو رونا شروع ہوئی، ہچکیوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ۔ کیسے بیوقوف لوگ ہو تم! کیا وہ لگتی تھی ایسی مجرم کرنے والے کو؟ کیا وہ جرم کرنے والی لگتی تھی؟ وہ تو بہت معصوم تھی، کیوں کرتی ہے ایسا مریم؟ اس کی آہیں تھی۔ حاشر تحمل سے بولتا دیکھ رہا تھا۔ کوئی انسان کتنا بھی چلاک بن جائے، مگر اس کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اس خطرناک لڑکی کی کمزوری بس مریم تھی، اس کی پیاری دوست۔ جب اس سے اتنی محبت تھی تو اسے پھنسایا کیوں تھا؟ وہ بہت معصوم تھی، کیوں مارا اسے؟ کیوں مارا؟ وہ سر کو دائیں بائیں کرتے روتے جا رہی تھی۔ پھر جب رو رو کر تھکی تو حاشر نے دوبارہ پوچھا، کیونکہ وہ بہت معصوم تھی، پہلی بار اس کے لیپ ٹاپ میں ویڈیو ڈالی تو اسے کہا مریم نہ کھولا، میری پرسنل ہے۔ تو پھر اس لڑکی نے اسے نہیں کھولا تھا، کھولتی تو ڈیلیٹ کر دیتی نا، مگر اس نے مجھ پہ اعتبار کر کے کھولی ہی نہیں۔ میں ایسی معصوم لڑکی کہاں سے ڈھونڈ کے لاتی؟